that this press conference has been especially organized to make the central government focus on the state of affairs in Sikkim. What we are facing in Sikkim is unprecedented. The damage is unprecedented. The loss in connectivity is unprecedented. Thousands of people have been displaced. Many have died. Many are living in relief camps. Chuptang, the people are in severe distress. Connectivity towards the border areas of India have been lost. This opens up an issue of strategic security. It puts our border security at risk at such a time when there are foreign elements in across our border. We cannot afford any of our border areas to be vulnerable, to be inaccessible to the Indian armed forces. We urge the central government to step up their aid. 44 crores is too small for the scale of devastation in Sikkim. We urge the central government to send a senior cabinet minister to review the situation. This is the situation. In such a situation, it would have been apt for the Union Home Minister to visit Sikkim. It would have been ideal for a Prime Minister who can find time to campaign in a Delhi Municipal Corporation election. It would have been ideal and it would have been normal to expect from such a Prime Minister who campaigns in a municipal election to visit and survey the state of affairs in Sikkim. Unfortunately, the Prime Minister is nowhere to be found. The Home Minister is nowhere to be found. Another state in the Northeast is facing severe devastation and people are in severe distress. And another state in the Northeast is seeing that the Prime Minister is absent. Our only hope is that, like in 2011-12, when the earthquake hit Sikkim, the entire nation rallied together. Central government, state government, ordinary people, we all rallied together to help the people of Sikkim in need. Today is the time that we should do that because it is unprecedented. So with that, I would like to close my opening remarks, and if you have any questions, I'll be happy to take them. कई बार ऐसा देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से जब इस प्राकृतिक आपदा होता है या फिर किसी को मदद करने की बात होती है, कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ करके मदद करती है, चाहे यूथ कांग्रेस को कहते हैं या अपने लोगों को कहते हैं। क्या सिक्किम में भी कांग्रेस पार्टी अपने लोगों से मदद का आह्वान करेंगे? देखिए, ये तो हमारे डीएनए में है, इसको हमें बोलने की जरूरत भी नहीं है। हमारे जो लोग हैं वहीं पे हैं, ग्राउंड पे हैं, लोगों के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पर आपको भी पता है कि जो हमारी मांग ये है कि आज डैम इंजीनियर्स जाए, मेडिकल पर्सनल जाए, डॉक्टर जाए, एनडीआरएफ के फोर्स जाए, क्योंकि चॉपर्स की जरूरत है, एयर ड्रॉप की जरूरत है। तो हम ये चाहते हैं कि हम तो अपने व्यक्तिगत रूप से जिन लोगों को मदद कर सकते हैं वो तो हम करेंगे, लेकिन आज के तारीख में जो नाजुक स्थिति है, क्योंकि ये सीमा से जुटा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुटा हुआ है, हम किसी प्रकार से कोई भी आंच हमें भारत के जमीन पर 1 इंच पे भी आंच नहीं आने दे सकते। तो ऐसे एक अंतर्राष्ट्रीय माहौल में जिसके साथ हम सभी वाकिफ है, तो तत्परता हमकी दिखानी चाहिए। और वे प्रधानमंत्री जो म्युनिसिपल इलेक्शन में चुनाव प्रचार कर सकते, उनसे तो भारत अपेक्षा करता है कि वो ट्वीट के बजाय उत्तर पूर्वांचल में दिखाए दे। लेकिन जैसे मणिपुर से प्रधानमंत्री गायब है, दोबारा सिक्किम से भी गायब नजर दिखाई दे रहे हैं। गौरव जी से जुड़ा हुआ सवाल है, सिक्किम के लाचेन और लाचुंग में लगभग 3000 से अधिक लोग फंसे हैं, उसमें मैक्सिमम जो हैं वो पर्यटक हैं। जैसा कि अभी हमारे साथी ने पूछा कि कांग्रेस तो क्या करेगी, क्योंकि केंद्र सरकार से आपने कहा हमें कोई उम्मीद नहीं, तो कांग्रेस क्या करेगी इस पे? लाचेन और लाचुंग में 3000 पर्यटकों को कैसे बचाया जा सकता है? अगर हम चॉपर्स भेजे, आर्मी भेजे, अगर हम और इन आर्मी को निर्देश कौन दे सकता है? गृह मंत्री जो एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, किस विभाग में आते हैं?
गृह विभाग में आते हैं। प्रधानमंत्री जो बार बार बोलते हैं कि मैं उत्तर पूर्वांचल से मेरा बहुत लगाव है, उत्तर पूर्वांचल में मैंने प्रचारक के हिसाब से मैंने घूमा है, बहुत बार जाते हैं, तो चुनाव के समय क्यों दिखाई देते हैं? तो मुझे लगता है कि अगर हम सब मिलकर काम करें और जिसमें अहम जो काम और ज्यादा से ज्यादा काम जो कर सकती है वो केंद्र सरकार कर सकती है, हम सभी को अपना काम, मीडिया को भी सिक्किम के जो हालात है उनको दिखाना चाहिए, मीडिया का भी ध्यान और चीजों से भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना हम सिक्किम में ध्यान देंगे देश का, मीडिया का, लोगों का, सरकारों का, दलों का, उतना ही हम सिक्किम के लोगों को इस समय हम मदद कर पाएंगे। सर, मेरा सवाल इस विषय से अलग है, क्योंकि राजस्थान में आप स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। इस इश्यू के खत्म कर लेते हैं। ठीक है सर, आप राजस्थान में स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी कहती आई है कि हम जल्द जो है पहली सूची जारी करेंगे, लेकिन बीजेपी ने कल अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। 41 नाम घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें 7 जो है सांसदों को मौका दिया गया है। तो क्या कांग्रेस पार्टी भी कोई बड़े चेहरे जो है पहली सूची में जारी करेगी? और सवाल दूसरा ये भी है कि कब तक आखिरकार कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट आ सकती है? देखिए, भाजपा के पास तो सारे खबर पहले से पता चल जाती हैं कि कब कोड लगने वाला है, कब इलेक्शन घोषित होने वाला है, इसलिए उनकी तैयारी भी वैसी होती है कि कितना केमिस्ट्री है दोनों में, कि मॉडल इलेक्शन घोषित होता है, लिस्ट वैसे तैयार हो जाती है, कितना कोऑर्डिनेशन है। तो जो भी हो, जैसे कि हम हर बार कह रहे हैं कि राजस्थान में एक परंपरा होती है कि हर 5 साल बाद सरकार बदलती है। बहुत सालों से ये परंपरा हमने देखी हुई है, लेकिन इस बार बहुत हमने करीब से देखा है कि निर्वाचन के 2 महीने, अब 1.5 महीने ही रह गए हैं, लेकिन सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है। इस बार परंपरा टूटने वाली है, इसलिए भाजपा डरी हुई है और ये भाजपा ने उन लोगों को विधानसभा में टिकट दिए हैं, उन सांसदों को जिनके खिलाफ बहुत बड़ा एंटी इनकम्बेंसी है, वो दोबारा लोकसभा नहीं जीतने वाले थे, उनका टिकट काटने का एक बहाना भाजपा को चाहिए था और वो बहाना था कि विधानसभा में उनको लड़ाया जाए। जहां तक कांग्रेस पार्टी के सवाल है, हम पूरे तरीके से सक्रिय है, पूरी तरीके से हम तैयार है, ये चुनाव हम जीतने वाले हैं। गौरव जी, आपने कहा कि राजस्थान में इस बार परंपरा टूटने वाली है, तो क्या जो परंपरा कायम रखने वाले मुख्यमंत्री है उन्हीं को आगे भी मुख्यमंत्री पद पे कायम रखा जाएगा, वही आपका फेस रहेंगे? देखिए, हम जहां पे परंपरा की बात आती है तो मैं पार्टी का परंपरा भी आपको बोल ही देता हूं कि पार्टी का परंपरा जो होता है हम उसके अनुसार ही काम करेंगे। गौरव जी, मेरा सवाल इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर है। कल जो प्रस्ताव पास हुआ कांग्रेस पार्टी का, उसको लेकर काफ़ी चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक तरफा प्रस्ताव पास करके सिर्फ फिलिस्तीन का समर्थन किया, लॉन्ग स्टैंडिंग जो आपका समर्थन उनके साथ रहा है। क्या इसको लेकर कांग्रेस के लोगों में नाराजगी है, ऐसा कहा जा रहा है? कल भी CWC में इस बात को लेकर कुछ नेताओं ने नाराजगी जताई है, ऐसी बात आ रही है? बिल्कुल नहीं, ये सारे अफवाहें हैं और जो लोग कांग्रेस पार्टी के ये रेजोल्यूशन को देखकर राजनीतिकरण कर रहे हैं, मुझे तो लगता है अफसोस की बात है। जब हम सब दुखी हैं, हम सब वहां पे जो भी भारतवासी हैं, आज इजराइल में हो या गजा में हो, हम चाहते हैं कि हमारे भारत के नागरिक सुरक्षित रहे, भारत के नागरिक वापस आए, ध्यान तो यहाँ पे होना चाहिए। तो ये जो अलग अलग चीजें हैं, अपने सरकार की विफलताओं को छुपाने के लिए सिक्किम में उनकी जो विफलताएं हैं, अपने जो राजस्थान में लेके जो उनके आंतरिक जो गुटबाजी है, कल जो वो लिस्ट निकली उसमें कितने राजस्थान के भाजपा के लोग कितने नाराज हैं, वो सब छुपाने के लिए इस प्रकार की बेबुनियाद बातें कर रही है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने अभी तक जो बात रखी है हम उसके साथ हम सहमत है और सहमति हमारे पार्टी के अंदर है और लोगों के बीच में भी ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ये सिर्फ भाजपा अपने जो उनका काम है ध्यान भटकाने का, वही वो कर रहे हैं।